Namaskar and welcome to this tarot reading for the no contact for the sign of Gemini for mid-January. Now please remember this is a general reading, so this may or may not resonate with all of you. This is Sun, Moon, Venus and Rising, and remember that roles can be reversed. That is, this can be your energy or your person's energy, and the energies can shift or change anytime. So now let's see what's going on with the person of Gemini for the next 15 days. What is the person of Gemini feeling for the next 15 days? My love team, in no contact. It's a no contact reading. That is no communication and no contact. So let's see what's going on with Geminis for the next 15 days. What is going on for the person of Geminis? How they are feeling in no contact. Okay. Okay, Gemini, we have got the Six of Swords, the Four of Swords, Lot of Swords, and the Seven of Swords, and with the Ten of Swords and the Sun in the reverse. There has been an ending, a very, very bitter, sad, हर्टफुल एंडिंग. आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत अगली तरीके से ये रिलेशनशिप एंड हुई है, एंड दे आर वेरी अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड. सन इन द रिवर्स, so an ending. So 10 of swords, so they are very very unhappy from inside. They want वो पूरे एफर्ट्स अब लगाना चाहते हैं. दे आर लाइक लिटरली प्रेइंग टू गॉड कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए. नाउ वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स. तो उन वो दे आर हीलिंग, दे आर रेस्टिंग बिकॉज दे आर वेरी वेरी एंक्शियस. वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है इस समय जेमिनाइज, एंड उन्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में किया है मगर वो फेल हो गया. And somehow they are trying to keep themselves calm. They are either traveling, moving to another place, or they are moving to calmer waters. So वो अपने आप को patiently handle कर रहे हैं. अपने मतलब वो they are trying to keep themselves peaceful because they feel that this relationship has failed like anything. और उनको इस बात की मतलब वो एक तरीके से दुविधा में है कि वो उनको एंग्जाइटी भी है और उनको फेलियर का एहसास भी है, और दे वांट टू बी काम एंड पीसफुल एंड पेशेंट ऑल्सो जेमिनाई फॉर योर पर्सन. सो लेट्स सी व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक. एनी what action my love team Gemini, the person of Gemini, will take in the next 15 days or the mid of January. दे आर डिसकनेक्टेड. ऑफकोर्स आप लोग नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में है. सो लेट्स सी व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक इफ एनी इन द नेक्स्ट 15 days. What action will the person of Gemini take in the next 15 days? So they are lot in their mental head. वो बहुत ज़्यादा mentally सब बातों को सोच रहे हैं, साथ में वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश भी कर रहे हैं. सो लेट्स सी. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, वी हैव गॉट द एम्परर, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो वो एक तरीके का बहुत बड़ा बोझ कैरी कर रहे हैं. जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ वो डेफिनेटली सेपरेशन से बाहर आना चाहते हैं. दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विद द जस्टिस कार्ड ईयर, मगर उनके स्टार्स फेवर नहीं कर रहे हैं. एंड आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू टेक एनी एक्शन बिकॉज उन्होंने अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर लिया है और वो समझ गए कि ये रिलेशनशिप फेल हो गया है एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, और इसमें कोई ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं है. और उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी है, यानी कि अपने इमोशंस को काबू किया है. एंड वो लेकिन वो अपने आप को बहुत ही अधूरा पाते हैं आपके बगैर. दे डेफिनेटली मिस यू. दे फील कि आप उनकी लाइफ में नहीं है, तो दे आर उन्हें लगता है दे आर लॉस्ट. दे आर टोटली very very sad also, very very anxious also, but presently they are focusing on their money, on their health, on their own self, and like I don't think so they are going to take any action. They are not going to take any action in the next 15 days. Now let's see what is the advice for you, Gemini, for the next 15 days. You can do this. You are much stronger than you think. Then let's take another card here.
Let's take another card here for Gemini. Yeah, आपके लिए आया है रिलीज योर पास्ट. तो आपको अपने पास्ट को यानी कि इस रिलेशनशिप को आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है उसको रिलीज़ कर देना चाहिए. यू सी अ ब्यूटिफुल सन हियर सेटिंग हियर. सो समथिंग इज़ एंडिंग और एक नई शुरुआत हो रही है. ये सन राइजिंग भी हो सकता है और ये सन सेटिंग भी हो सकता है. सो एंड ऑल्सो यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक. तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है बट यू कैन स्टिल हैंडल ऑल दिस विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ. So this can be a rising sun, this can be a setting sun, but it is saying that you have to release your past. So this is what I have for you, Geminis. And I hope you got something out of it. Please hit the like button and see you next time. Bye-bye.